مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارا غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں اپنے پورا قرآن پاک یاد کر یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر کھانا بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارا بھی دیکھ لینا ہے. عقل نہیں مانتی ہیں بھائی، حضور عقل نہیں مانتی. میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے. آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن ایکسٹرا. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب نے کہانی سنائی ہے آج کے اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا، تو انہوں نے 30 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا، اور جو ہے ایک دن کے اندر وہ مغرب سے عشاء کے درمیان میں ایک سپارہ حفظ کر لیا کرتے تھے. ان کو برا لگ گیا کہ کسی نے مجھے حافظ کہا اور میں حافظ نہیں ہوں. اس کے بعد انہوں نے پورے 30 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا. چلیے الیاس قادری صاحب کا یہ موقف سنتے ہیں، اس کے بعد انجینئر صاحب اس پہ جواب دیں گے. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظہ بہت قوی تھا. یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو، تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں. یہ بیچارے مطلب خوش فہمی ہے ان کی. تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارا غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں اپنے پورا قرآن پاک یاد کر. یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر کھانا بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارا بھی دیکھ لینا ہے. عقل نہیں مانتی ہیں بھائی، حضور عقل نہیں مانتی. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے. عقل میری بھی نہیں مان رہی بالکل. آپ اچھا فرمایا، لیکن میں آپ کو بتاؤں. اچھا، یہ عمران اتاری صاحب بیچ میں بول رہے ہیں کہ عقل نہیں مانتی. عمران اتاری صاحب کی آواز لگ رہی ہے مجھے. چلیں آگے سنتے کیا کہتے ہیں. ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں، جو ولی سے صادر اس بات کو کرامت کہتے ہیں. کرامت تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو نہ عقل میں نہ آئے، یعنی کہ جو ایسا ناممکن ہو، عقلاً ناممکن ہو ایسا کرنا. میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے تو ایک رکاب میں نہیں، ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں. پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اسکوٹر پہ آپ چڑھتے ہیں، وہ گھوڑا تھا، اسکوٹر نہیں تھی، تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے ایک پیڈل سے دوسرے پیڈل ڈالنے تک. جیسے کہ ہم اگر بائک پہ بیٹھتے ہیں تو ایک بائک پر مطلب پاؤں رکھتے ہیں، دوسری طرف پاؤں گھمانے تک میں ایک قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آگے سنتے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. یہ مولا مشکل جی کرامت ہے آپ کی، شیر خدا. جی یا علی. تو دین شعبہ بازی کا نام ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے. ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں. ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچایا، بالکل ایسے، اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا. اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ. یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ
विलायत के मकाम में सबसे ऊपर है, अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है। लेकिन उनके बारे में झूठी बात है, सलाम फेरते थे, जब इधर मुंह करते थे तो इधर वाले उलमा बन जाते थे, और इधर मुंह फेरते थे तो इधर वाले हाफिज बन जाते थे, और वो अनपढ़ कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे भाई ऐसा नहीं, मेरे नबी से बड़ी नजर है जिलानी की, कुतुब सुबहानी, पीराने पीर, जितने टाइटल दो थोड़े हैं, लेकिन मेरे नबी के सामने तो वो एक सही तिनके की हैसियत नहीं रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। सारी विलायत तो बहुत छोटी चीज है, सारे अंबिया इकट्ठे हो जाएं तो मेरे नबी के सामने क्या है, कुछ भी नहीं। तो मेरे नबी सलाम फेरते तो आलिम बना देते, इधर सलाम फेरते तो हाफिज बना देते, आपने तो किया नहीं तो ये पीराने पीर कैसे कर दिया। ये इस किस्म के झूठे किस्सों ने वो दीन का हुलिया बिगाड़, दीन की शक्ल बिगाड़। बिल्कुल ऐसा ही है। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? मैंने अक्सर बुजुर्गों के बारे में सुना है कि जी रोजाना एक कुरान पढ़ते थे। कोई आगे जाता है वो कहता है जी रात को खड़े होते थे, एक टांग पे एक कुरान पढ़ते थे, दूसरी टांग पे खड़े होके दूसरा कुरान। जिसने थोड़ी लंबी छोड़नी होती है वो कहते हैं जी 3 कुरान रोज के। 8 कुरान वाला वर्जन भी है। सर फज़ाइल अमाल उठाएं, ये मैं ये नहीं कोई जुबानी कलामी बातें नहीं कर रहा हूं, ये वो टेक्स्ट बुक है जिसके बारे में दावा किया जाता है कुरान के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है फज़ाइल अमाल। मैं तबलीगी जमात से बड़ी मोहब्बत करता हूं, आपको पता है। जहां पे इल्मी इख्तिलाफ है मैं जरूर रिकॉर्ड कराऊंगा। सही। मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला के सामने भी सारा मुकदमा रखा है, और आपको पता है तब्दीली तो आई है ना, फिर क्लिप देखा है आपने, तब्दीली आ गई है, वो भी मानते हैं। लेकिन उन बेचारों का जितना जोर चलता है उतनी बात कर सकते हैं। तो ये फज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है मेरे भाई कि एक बुजुर्ग थे रोजाना एक कुरान पढ़ते थे, एक और बुजुर्ग का लिखा साथ कि वो 3 कुरान रोजाना पढ़ते थे। फिर आगे के कहते हैं 8 कुरान भी रोजाना पढ़ते थे। और फिर लिखा कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला रमजान शरीफ में 61 कुरान पढ़ते थे। 61 कुरान, 61 की गिनती वो कहते हैं एक कुरान दिन में एक रात में, कितने हो गए 60, और एक तरावीश भी। बिल्कुल हाँ जी, एक 8 था, फिर ताक करना था ना उन्होंने। अब ये लाना बात है जब 29 रोजे होते होंगे फिर क्या करते होंगे। तो 12 लोग कहते हैं 61 कुरान इमाम हनीफा रहिमहुल्लाह। ये फज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है। सर हम जेपीजी ऐड करेंगे, एक एक चीज का जेपीजी डालेंगे, सही, ताकि आप एक बार ये सोचें कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। सही। ये बाबों का तारुफ है कुरान के हवाले से, और एक किताबों का तारुफ है। सर जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने 3 दिन से कम में कुरान कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, उसने कुरान के फहम में से कुछ भी हासिल नहीं किया। ये उनको कह रहे हैं जिनको अरबी आती थी, तो आनुद अरबी आंदी भी कोई नहीं। जिनको अरबी आती है उनको कहा जा रहा है 3 दिन से कम में कुरान मुकम्मल किया, तो फहम इसका हासिल ही ना किया। तो ये जो 8 कुरान रोजाना कर रहे हैं, ये किस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? अपनी विजुअल थिंकिंग्स में सरगर्दा है। और इससे भी मजे की बात, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने सहाबाए किराम से फरमाया, ये हदीस बुखारी में भी है लेकिन मुस्लिम में डिटेल है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, सही, कि भला बताओ तुम में से किसी शख्स की इस्तिताअत है कि वो एक रात में 3/4 कुरान पढ़ ले, यानी 10 पारे। आज की डेट में पारे उस जमाने में तो नहीं थे। तो सहाबे किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह किसकी इस्तिताअत होगी कि वो रात में 1/3 कुरान पढ़ ले? हाय 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 हाय, सर है इस्तिताअत, फज़ाइल अमाल में 8 भी आ जाए। लेकिन सहाबा किराम तो बुजुर्ग नहीं थे ना, आपको पता है, वो तो कामिल ईमान मोमिनीन थे। ये कहानियों वाले हैं, वो कामिलुल ईमान ए कहानीबाज। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह किसी की इस्तिताअत नहीं। तो आपने फरमाया कि सूरतुल इखलास पढ़ लो, ये 3/4 कुरान के बराबर है। सही, 3/4 कुरान के बराबर है अपने नजरियात के एतबार से भी, क्योंकि कुरान हकीम का 1/3 अकीदा तौहीद है, और चूंकि सूरह इखलास तौहीद की जड़ है, इस एतबार से भी तालीमात में भी 1/3 है कुरान का, और फजीलत में भी। अच्छा, अगर ये कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग जो 8 कुरान पढ़ते थे वो 24 बार पढ़ते सन सूरह इखलास, फिर तो ठीक है। 8 × 3
इज इक्वल टू 24 टाइम्स अगर सूरह इखलास कोई पढ़ ले और 8 कुरान रोजाना के, अगर ये कहते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने ये नहीं कहा हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पे पूरी रात एक टांग पे खड़ा नहीं होना पड़ता। सूरह इखलास अगर किसी ने पढ़नी है 3 दफा, कितना टाइम लगता है। और आपको एक ओरिजिनल मदनी लतीफा सुनाते हैं। यहाँ पे जेलम हमारे शहर के अंदर तबलीगी मरकज है। कभी कभार मैं जोर की नमाज में वहां चला जाता हूँ, तो जोर की नमाज के बाद ना फजाइल अमाल की तालीम होती है। अब वो आलिम दीन है जो वो फजाइल अमाल पढ़ के सुना रहे होते हैं, और सामने मदरसे के बच्चे भी होते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को पाबंद किया कि तुमने भी सुन लिया करो तालीम ना। अब मेरा एक बच्चा माशाल्लाह 10 साल का है और एक ऑलमोस्ट 11 साल का। तो ये मैं 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो हम दर्स सुन रहे हैं ना, तो यही वाला जनाब वो फजाइल कुरान वाला आ गया जी, एक बुजुर्ग 3 कुरान रोजाना, एक 8 कुरान, और ये 61 कुरान। अब मैं जब बैठा हुआ दर्स सुन रहा ना, तो मैं बच्चों की तरफ देख रहा, मैंने कहा कहीं ये भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। तो खैर बाद में हम जब मोटर बाइक पे बैठे, मैं घर आने लगा, तो मेरा बच्चा मुझे कहता है, अहमद, कहता है बाबा ये बाकी बातें तो ठीक थी, एक बंदा रोजाना 3-8 कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मैंने कहा बेटा ये कहानी थी, इसको छोड़ दो, बाकी बातें ले लो। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि 80 लोग इस उम्र टगे सा डंगर, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हुई भी थी। और आजकल के बच्चे सोचते हैं, क्यों सोचता है? उसने कुरान कई दफा मुकम्मल किया, उसे पता है ये इतनी मोटी किताब है, ये 8 दफा रोजाना कैसे पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब लाख किसी को कहते रहे जनाब इंज करके पढ़ ली, तो उंज करके पढ़ ली, कैसे मनवाएंगे? और मैंने तो अहदीस से साबित कर दिया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी कह रहे हैं कि किस की हिम्मत है कि रात में तिहाई कुरान पढ़ ले। बिल्कुल सही। तो नबी अलैहि सलाम ने वजीफा दिया है सूरह इखलास का, सूरह इखलास। तो हम तो यानी ये सारी मिसालें आपके सामने इसलिए रखते हैं कि आप कम से कम मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। सो दोस्तों, आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। इलियास कादरी साहब की कहानी एक्सपोज हो गई इसके अंदर के उन्होंने जो बातें कही आला हज़रत के हवाले से और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, कि जो है वो एक पैडल से दूसरे पैडल में कुरान शरीफ पढ़ लिया करते थे। उनकी तालीमात ये नहीं है जो इन लोगों ने अपने उनके बाद जो बना लिए हैं। तो सहाबा किराम भी 10 यानी कि एक दिन के अंदर 10 सिपारे पढ़ने को भी मुश्किल समझते थे कि किस तरह कोई पढ़ सकता है। और जैसे कि कुरान और हदीस की रोशनी में है कि 3 दिन में किसी ने कुरान शरीफ ख़त्म किया तो उसने उसका फ़हम हासिल नहीं किया। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई ऐसी वीडियोस में आपके सामने लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप इज़्ज़त के जारे में शामिल हो जाएँ। और हमें यहाँ पे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।